ایک جنگل میں راجہ باز بہت دیر سے راج کر رہا تھا۔ جنگل کے باقی پرندے اس سے بہت خوش تھے، لیکن اچانک جنگل میں قحط پڑ گیا۔ تمام پرندے اور جانور آہستہ آہستہ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ ایک دن راجہ کو بھی بہت پیاس لگی۔ وہ پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ کافی دور تک اڑنے کے بعد اسے ایک تالاب نظر آیا۔ راجہ بہت خوش ہو گیا۔ راجہ نے دیکھا تالاب میں پانی بہت کم تھا۔ راجہ جیسے ہی پانی پینے لگا، اس نے دیکھا اچانک وہاں ایک کالو کوا آ گیا۔ ٹھہرو، میں بہت پیاسا ہوں، دوسرے جنگل سے آیا ہوں، اسی لیے پہلے مجھے پانی پینے دو۔ پہلے پانی میں پیوں گا۔ ارے بیوقوف کوے، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ میں جنگل کا راجہ ہوں؟ کس کا جنگل؟ کون سا جنگل؟ میرا کوئی راجہ نہیں، پانی تو صرف میں ہی پیوں گا۔ احمق، تو جہاں سے بھی آیا ہے پانی کو نہیں پی پائے گا۔ یہ میرا پانی ہے اور میں کبھی اپنا پانی کسی کو نہیں پینے دیتا۔ تم مجھے کیا مارو گے؟ اب تم کون سے راجہ ہو؟ سبھی پرندے مر چکے ہیں۔ پہلے اپنی حالت تو دیکھ لو، تم میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے مار سکو؟ کالو کوا اور راجہ باز لڑنے لگے۔ اچانک وہاں بلی آ گئی۔ ارے یہ دونوں کیسے لڑ رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی لڑتے رہے تو دونوں ایک دوسرے کو مار دیں گی۔ یہی صحیح رہے گا۔ ویسے بھی آج کل میرے تو بڑے مزے ہیں، ہر جگہ کھانا ہی کھانا ہے۔ تبھی کالو کوے کی نظر بلی پر پڑی۔ تب اس نے راجہ سے کہا، ارے یہ کیا بلی؟ لگتا ہے یہ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ راجہ جی، بھلا اسی میں ہے ہم آدھا آدھا پانی پی کر یہاں سے اپنے اپنے راستے نکل جائیں، نہیں تو تم مجھے نہیں چھوڑو گے اور میں تمہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس بلی کی نظر ہم دونوں پر ہے۔ دونوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ تالاب کے پانی کو مل بانٹ کر پی لیا اور اپنے اپنے راستے اڑنے لگے۔ بلی کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا اور وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل کے ایک درخت پر ایک سیانا کوا رہتا تھا۔ کوا بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بغیر کسی فکر کے وہ پورا دن گھومتا پھرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا۔ شام ہوتے ہی کسی پھلدار درخت پر رات بسر کرتا۔ زندگی کے حسین دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن کوا جنگل میں گھومنے نکلا۔ گھومتے گھومتے اسے ایک جھیل نظر آئی۔ یہ جھیل جنگل کے درمیان تھی، جہاں کئی پرندے رہتے تھے۔ کوا پانی پینے کے لیے جھیل کے پاس گیا تو اس کی ملاقات ایک ہنس سے ہوئی۔ جلد ہی کوا اور ہنس اچھے دوست بن گئے، لیکن کوا یہ سوچنے لگا کہ ہنس اتنا سفید کیوں ہے اور میں اتنا کالا کیوں ہوں۔ کوا جھیل میں تیرتے ہنس کو دیکھ یہ سوچتا تھا کہ ہنس پانی میں اتنی آسانی سے مزے سے تیر سکتا ہے اور جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ جھیل میں ہی دستیاب ہے۔ یہ ہنس دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے، مجھے بھی ہنس جیسا بننا چاہیے۔ یہ سوچ کر جھیل میں تیرنے کی کوشش کی۔
लेकिन वो डूबने लगा और बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आया। भैया, मुझे तुम सबसे खुशनसीब लगते हो। कौवे भैया, पहले मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ, लेकिन इस वक्त तक मैंने तोते को नहीं देखा था। तुम्हें पता है कि तोते के पास हरे, नीले और सुर्ख सुनहरे पर होते हैं। तोता तो इंसानों की तरह बोल सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। अच्छा भैया, तो फिर तोता सबसे ज्यादा खुशनसीब होगा। मुझे बताओ वो कहाँ रहता है, मुझे भी तोते को देखना है। कौवे भैया, वो झील के दूसरे किनारे पर मौजूद दरख्त पर रहता है। फिर कौवा तोते को ढूंढने के लिए उड़ने लगता है। कौवा उड़ता हुआ तोते के पास पहुंचा और तोते से कहने लगा, तोते भैया, मुझे इंसानों की तरह बोलना सिखाओ। तोता इंसानों की तरह बोलने लगता है। काएं काएं भैया, मुझसे तो काएं काएं ही होता है। मुझे लगता है कि आप सबसे खुशनसीब परिंदे हो। कौवे भैया, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन फिर एक दिन मैंने मोर को देखा। मेरे पास तो सिर्फ 3 पर हैं, लेकिन मोर के पास कई रंगों के कई पर हैं। वो खूबसूरत रक्स कर सकता है, इसकी आवाज़ बहुत बुलंद है। अपनी आवाज़ से मोर जंगल में मौजूद दीगर मखलूक़ात को ख़तरे से ख़बरदार कर सकता है। मेरे ख्याल से मोर सबसे खुशनसीब परिंदा है। अच्छा तोते भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं मोर कहाँ रहता है? जी, वो जंगल में झाड़ियों के पास एक दरख्त के नीचे रहता है। अच्छा तोते भैया, अब मैं मोर से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर कौवा मोर के पास चला गया। वहाँ कौवे ने देखा कि मोर घबराया हुआ था और झाड़ियों में खुद को छुपा रहा था। कौवा मोर के करीब गया और कहने लगा, मोर भैया, तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हारे परों में कितने सारे रंग हैं। तुम्हारी दिलकशी, खूबसूरती और रक्स की तारीफ तो पूरा जंगल करता है। तुम यहाँ झाड़ियों में क्यों छुप रहे हो? कौवे भैया, मेरे इन परों ने मुझे तंग कर दिया है। मेरे लंबे और रंगीन पंख सबको खूबसूरत लगते हैं, इसलिए शिकारी मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। बाज़ औक़ात वो मुझे चिड़ियाघर में डाल देते हैं। इस वजह से मेरा दिल चाहता है कि मैं चिड़िया होता तो खुशी खुशी हर जगह घूमता और आसानी से किसी भी जगह छुप जाता। मोर भैया, मैंने तो समझा था कि आप सबसे खुशनसीब परिंदे होंगे। मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे खूबसूरत और खुशनसीब परिंदा हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से छुपता फिरता हूँ। मैंने काफ़ी गौर किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि कौवा सबसे खुशनसीब परिंदा है। उसे कोई शिकारी नहीं पकड़ता, उसे किसी पिंजरे में कैद नहीं किया जाता। पिछले कुछ दिनों से मुझे यही लग रहा है कि कौवा ही सबसे खुशनसीब है। एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू दरख्त पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो कौवे और मोर को कहने लगा, कौवे भैया, हम में से हर एक में कोई ना कोई खसूसियत होती है। हंस पानी में तैर सकता है, तोता इंसानी आवाज़ की नकल कर सकता है, मोर रक्स कर सकता है, चिड़िया छोटी और फुर्तीली होती है।
मेरी तरफ देखो, मैं तैराकी या रक्स नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ और अपने पीछे मौजूद चीज़ें देख सकता हूँ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं कि जब दिन के वक्त सारे परिंदे काम कर रहे होते हैं और मैं अपने घोंसले में सो रहा होता हूँ। उल्लू भैया, इसका मतलब है सबसे खुशनसीब मैं हूँ, लेकिन मैं तमाम परिंदों से ज्यादा नाखुश हूँ। देखो कौवे भैया, समझ-बूझ में कौवे को दूसरे परिंदों से बढ़ती हासिल है। क्या तुमने प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी? कौवा ज़हीन और अक्लमंद होता है, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है और वो सोच समझकर कदम उठाता है, इसलिए किसी भी शिकारी का उसे पकड़ना और निशाना बनाना मुश्किल होता है। उल्लू को भी परिंदों में अक्लमंद माना जाता है। कुदरत ने हम में से हर एक को कुछ न कुछ सलाहियतें दी हैं। हम में से हर एक किसी न किसी चीज़ में बेहतरीन है। हमें खुद पर तरस खाने की बजाय मेहनत करनी चाहिए और जो काम हम करते हैं इसमें महारत हासिल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर बगौर जायज़ा लें तो हम में से कुछ इंसान भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। ज़िंदगी का मुआवजा करते करते जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया होता है उससे लुत्फ़ हासिल नहीं कर पाते और शुक्र अदा नहीं करते। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।